Okay. Our first question is, why was Kezia afraid of her father? अब क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी. Kezia's father spoke very loudly. He often rebelled and beat her, so she was afraid of her father. केजिया के पिता बहुत जोर से बोलते थे और वह अक्सर केजिया को डांटते थे और पिटाई करते थे, इसलिए वो हमेशा अपने पिताजी से डरा करती. Who were the people in Kezia's family? क्वेश्चन नंबर 2. केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग रहते थे? There were 4 people in Kezia's family. Kezia, her father, her mother and her grandmother. उनकी फैमिली में 4 लोग थे. केजिया, उनके पिताजी, उसकी माताजी और उसकी दादी. What was Kezia's father routine? Question number 3. Before going to his office, after coming back from his office on Sundays. केजिया के पिता का जो डेली का रूटीन था वो क्या था? ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से लौटने के बाद और संडे के दिन. Answer is, before going to his office, Kezia's father came into her room and gave her a casual kiss. हमेशा ऑफिस जाने से पहले उसके पिता अपनी बेटी के रूम में आते थे और उसको प्यार करते थे, प्यार से एक किस देते थे. After coming from office, Kezia's father went into the drawing room and cried loudly for tea and newspaper. ऑफिस से आने के बाद वो ड्राइंग रूम में जाते थे उसके पिताजी और जोर से चाय के लिए और न्यूज़पेपर के लिए चिल्लाते थे, यानी मांगते थे. On Sunday, Kezia found her father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे के टाइम में उसके पिताजी पूरे दिन आराम करते थे, सोफे पे लेट जाते थे, मुंह पर रुमाल रख करके एक तकिए पे पैर रखते थे और अच्छी नींद लेते खराटे भरी. Question number 4. In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? केजिया की दादी ने उसे किस प्रकार उत्साहित किया कि वह अपने पिता को अधिक से अधिक अच्छे ढंग से समझ सके. On Sundays, Kezia's grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. संडे के दिन केजिया की दादी उसे नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में और कहती थी अपने माता पिता के साथ बैठो और बातें करो. Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? Next question is, केजिया ने अपने माता पिता को प्रसन्न करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पिता उससे बहुत अधिक नाराज हो गया. Kezia was afraid to her father very much. He was a figure of terror for her. Her grandmother wanted her to understand the fathers properly. The birthday of Kezia's father was next week. Her grandmother gave her a suggestion. She said that she should make a pin cushion for her father. Kezia worked hard for the cushion. She used double cotton, but she had nothing to stuff it with. She went into her father's bedroom. She found some sheets of paper. She tore them up. She filled the pin cushion with them. The sheets of paper were very important for the father. She had written an important speech on them. But now it was lost. He became very angry with Kezia. He beat her with a stick. Kezia did not know that the papers were so important. She told them in a ignorance. केजिया अपने पिता से बहुत डरती थी और उन्हें एक डरावनी चीज के समान समझती थी. उसकी दादी चाहती थी कि वो अपने पिता को अच्छा समझे, इसीलिए उसने केजिया को सलाह दी कि वो अपने पिता को एक तोहफा दे और उनके लिए एक पिन कुशन बनाए. केजिया ने पिन कुशन बनाने के लिए बहुत मेहनत की. सूती कपड़े को लिया और उसमें भरने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के बेडरूम में गई और वहां से कुछ पन्नों को फाड़ करके ले आई और उसे पिन कुशन में भर दिया. कागज के पन्ने उसके पिता के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे. उस पे उनका भाषण लिखा हुआ था. इसलिए किता के इसीलिए सॉरी इसीलिए केजिया के जो पिता थे उनको बहुत बुरा लगा कि उसने उसके इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया. उन्होंने उसको पीटा
केजिया को पता नहीं था कि ये कागज उनके लिए कितने आवश्यक थे, इम्पोर्टेंट थे। Kezia decides that there are different kind of fathers. What kind of father was MacDonald and how was he different from Kezia's father? Question number 2. ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। Mr. MacDonald was Kezia's next door neighbor. He had 5 children. One day, when Kezia sees MacDonald playing with his children in the garden, she decides that there are different kind of father. Mr. MacDonald was different from Kezia's father. He was kind and loving to his children. He often loved and laughed and played with him. He mixed with his children well. His children were not afraid to him. Kezia's father was hard-hearted and rough. He did not treat her kindly, but MacDonald was kind and cheerful. He played with his children. मिस्टर मैकडॉनल्ड जो थे वो केजिया के पड़ोसी थे। उनके 5 बच्चे थे। वो अपने 5 बच्चों के साथ जब छुट्टी होती थी तो घर के आंगन में खेला करते थे। और उसे लगता था कि कई तरह के पिता होते हैं। जो कुछ पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत दयालु होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं। मगर उनके पिता जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। उनका व्यवहार जो है वो बहुत क्रूर है। वो बहुत कठोर दिल के हैं और वो मेरे साथ कभी भी नहीं खेलते। Question number 3. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? केजिया कब अपने पिता को एक इंसान के रूप में समझने लगी और उसकी सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता, जिसे उसकी सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता थी। Kezia used to sleep with her grandmother. One day her mother becomes ill and grandmother goes to hospital with the mother. She left She is left to sleep alone. At night, she has a frightening nightmare. She cries loudly for the grandmother. Her father listens her cries and carries her in the arms to his bed. He carefully tucks up the baby on the bed and lays down beside her. The father was tired. He sleeps before the little girl. The girl thinks that there is no one to look after him. She thinks that he works so hard all the day for the family, so he does not get any time to play with her. Thus, she begins to see her father as a human being who needs her sympathy. केजिया अपने दादी के साथ हमेशा सोया करती थी। एक दिन जब उसकी माँ बीमार हो गई तो दादी के साथ अस्पताल चली गई। दादी उसे अस्पताल लेके चली गई और केजिया को घर पर अकेला ही अपने बेडरूम में सोना पड़ा। रात हुई तो उसे डर के मारे बहुत भयानक सपने आने लगे। वो जोर से चिल्लाई, दादी माँ को उसने पुकारा, मगर उसकी चीख सुन करके दादी माँ तो नहीं आई। उसके पिताजी जो बगल के कमरे में सो रहे थे वो आए। उन्होंने प्यार से केजिया को गोद में उठाया और अपने बिस्तर पे लिटाया और स्वयं उसके पास ही लेट गए। पिताजी उसके इतने थके हुए थे कि वो जल्दी ही सो गए। तब केजिया को समझ में आया कि उनके पिताजी उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनके परिवार को चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए शायद उनको खेलने का समय नहीं मिलता है केजिया के साथ। तब से उन्हें समझ में आ गया कि उनके पिता कठोर नहीं है और उस दिन से वो अपने पिता को एक इंसान के रूप में समझने लगी, जिससे उसकी सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता थी। आई होप क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब मैं सभी बच्चों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को, केजिया का स्टोरी? और क्वेश्चन आंसर भी आई थिंक समझ में आ ही गया होगा सबको, है ना? ओके, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं। जिसको पता हो अपना आंसर्स दे सकता है, ठीक है? मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो कौन थे? मिस्टर मैकडोनल्ड कौन थे? वेल,
गुड, गुड। केजिया के नेबर थे। उनके कितने बच्चे थे? 5। वो क्या करते थे अपने बच्चों के साथ? वेरी गुड। और इसके अपोजिट केजिया अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी? हम्म। और हम्म। केजिया सबसे ज्यादा किस हाँ, केजिया सबसे ज्यादा किससे डरा करती थी और क्यों? क्यों? अच्छे नहीं लगते थे? क्यों अच्छे नहीं लगते थे? क्या कारण था? हम्म। हम्म। उसको ऐसा लगता था कि हाँ, कि उसके पापा एक दैत्य हैं जो जब भी घर में आते हैं तो चिल्लाते हैं जोर जोर से। ठीक है। अगर वो कुछ ऐसा कर दे, कुछ भी छोटी सी गलती कर दे तो उसको बहुत पीटते हैं, उसको डांटते हैं। कभी दूसरे के पापा की तरह, जैसे दूसरे के पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं वैसे मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते। और जैसे दूसरे पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे ही वो उसके साथ खेलते नहीं, उसके साथ प्यार से व्यवहार नहीं करते। ठीक है। और केजिया किसके साथ सोया करती थी हमेशा? दादी के साथ। तो दादी को बाहर क्यों जाना पड़ा? दादी को एक दिन हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? उसकी मदर बीमार हो गई थी। अच्छा, तो जब उसकी दादी उसकी मदर को लेके चली गई तो फिर उस रात क्या हुआ? हम्म। फिर इससे केजिया को कैसा लगा और उस अपने पिता के बारे में जो उसके विचार थे वो बदले या नहीं बदले? वेरी गुड। ठीक है। और केजिया के फादर का डेली रूटीन क्या था? जोर जोर से चिल्लाते थे और चाय और न्यूज़पेपर मांगा करते थे। ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी मच। आप लोगों को समझ में आ गई है पूरी स्टोरी सही से? इस स्टोरी को आप लोग सही से पढ़ लोगे। क्वेश्चन आंसर सब लोगों के पास है इस चैप्टर के? जो मैंने अभी शुरू से 3 चैप्टर बताए हैं, जैसे पहला चैप्टर था आपका, एक मिनट मैं देख के बोल बताती हूँ, साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है आप लोगों के पास दोनों पार्ट के? सबके पास? गर्ल्स भी है ना एडेड? गर्ल्स भी जवाब देंगी। आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हुए ना कॉपी में? ओके। और ये जो तीनों चैप्टर है सबके किए हुए हैं ना? पहला कौन सा चैप्टर था? द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, केजिया के बारे में। केजिया का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा? ओके, स्टोरी सबको क्लियर हो गई? इसको एक बार और पढ़ लेना आप लोग घर में। ठीक है। नेक्स्ट जो डे है, हम लोग वेंसडे को आपकी क्लास रहती है, तो वेंसडे को हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, थर्ड पोएम, ये थर्ड पोएम, द रेन ऑन द रूफ। ठीक है। हाँ, तो मंडे, हाँ, हम लोग पोएम पढ़ेंगे उस दिन, द रेन ऑन द रूफ। ठीक है। देखते हैं, एक पोएम तो बहुत छोटी होती है, अगर ज्यादा होगा तो एक दो पोएम करके उसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 पोएम कर लेंगे इकट्ठे। ठीक है। आप लोगों को पता है ना, ये सितंबर में आप लोगों के पेपर होने वाले, फर्स्ट टर्म के एग्जाम। ठीक है।
बेटा ऐसे ही देखो अभी कैसे होंगे वो पता चल जाएगा। लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपके पेपर कैसे होंगे। ठीक है। तो अभी जो जो पढ़ाई हो रही है उसको ध्यान से पढ़ो, चैप्टर्स को अच्छे से समझो। ठीक है। और मार्क्स भी सही लाने हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्जाम है ना ये। आपके एग्जाम में सही मार्क्स आएंगे तभी तो, क्योंकि नाइन्थ का पेपर अगर आप क्लियर करोगे तभी जाके टेंथ में एडमिशन हो पाएगा। ठीक है। ओके ठीक है। और कोई दिक्कत है इस चैप्टर में तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है। सबको क्लियर है ना? चलो फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेंसडे को। ठीक है। ओके बाय। अंकित रहता है इस क्लास में हमेशा, है ना, क्लास 9C से। हाँ मुझे पता है। तुम्हारी आवाज आती है, मुझे समझ में आता है तुम्हारी आवाज से। ठीक है। चलो ठीक है। ओके। मगर गर्ल्स की आवाज नहीं आती बेटा, आप लोग भी आंसरिंग किया करो। ठीक है, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। क्या हो गया? अंकित क्या कह रहे हो आप? अच्छा आवाज नहीं निकलती। तो ठीक है, खाना वाना पहले खा करके तब बैठा करो तुम लोग भी। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पोएम बस पढ़ लेना, थर्ड और फोर्थ दोनों पोएम पढ़ लेना, एक साथ दो पोएम पढ़ा दूंगी क्योंकि एक पोएम तो बहुत छोटी होती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। ओके।